Good afternoon, dear friends. Good afternoon, sir. कल का टॉपिक क्लियर है सभी को डिफरेंशिएशन का? Yes. नहीं, फिर से एक बार बतलाना। क्लियर है डिफरेंशिएशन सभी का? क्या? Yes, sir. फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, बहुत डल रिस्पॉन्स है, क्या बात है? लंच नहीं हुआ? क्लियर है सभी को? कल का डिफरेंशिएशन पूरे होमवर्क दिया था मैंने, ट्राई कर लिया सभी लोग ने? हाँ बेटा? यस सर। सभी चीज को आगे आंसर सभी चीज के। चलो, सेकंड डेरिवेटिव भी कर लिया ना हम लोग ने। चलो नेक्स्ट साइड हेडिंग, किधर नेक्स्ट हेडिंग बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंबल क्या होगा बेटा? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज extended s, ऐसा extended s will be the symbol for the given condition, isn't it? Differentiation means क्या था बेटा? Dividing the function into finite number of small elements. Now here हम लोग क्या कर रहे हैं? sum कर रहे हैं basically. So हम लोग क्या कर रहे थे कल? When y was equal to f of your x, इसका हम लोग differentiate कर रहे थे dy by over dx. So we got some function f of your x. हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं? dy is equals to your f of your x into your dx, f of your x into your dx part of relation. मतलब देखो डिफरेंशिएशन मतलब क्या था बेटा? डिफरेंशिएशन means to divide the function, to divide the function into finite number of small elements. कल बताया था मैंने आपको, ठीक है ना? अनम्यूट कर लो बेटा, आप लोग की आवाजें बहुत आ रही है बेसिकली। चलो, so differentiation means what beta? To divide the function into your finite number of your small elements. Now हम लोग क्या करेंगे? Now we want to sum up all the small elements, यानी add करना small elements. Okay, now so we cannot add like an algebra beta here. It involves your finite terms and very very small terms are being involved here, so we can't use the algebra. So what I can write here is we cannot add like in algebra. जैसे addition subtraction होता है ना, वैसा यूज नहीं कर सकते हैं, because as it involves infinite terms, for me infinite terms, isn't it? And further each term is very very small, isn't it? Further each term जो होगा, each term is infinitely small, very very small. Like say if I take a hair of our human being and cut it into some like say 10,000 pieces, and if I ask you to add all of the 10,000 pieces by using some method, but you can't add like just like addition like 10,000 part affiliation, because every part is small and every part which you have been cut is again infinitesimally small.
So adding such type of elements, we can't use the algebra. So we are using the concept of what? Integration. So integration is nothing but what here? Method of. So I can say that integration is the method of summation. Reverse of the differentiation is the method of your summation. There we were cutting and here we are adding. Summation of an infinite series. Infinite series in which each term tends to 0. In which each term tends to 0 but not 0. Tends to 0 and almost all 0 but not it is exactly 0. Isn't it? Now I can say that integration is just the reverse phenomenon of differentiation. I can say in a simple language, integration is just an inverse process. It is just an inverse process of differentiation. Okay. So एक term याद रख लो बस काफी है basically. So I can write here right now, integral of your dy must be equal to integral of your f of your x into your dx. That means this will become for me integral of y into this is f of your x. Again, we'll get back the value, isn't it? So what do you mean by the integration, beta? Integration basic symbol is this one. So differentiation means to divide the function into infinite number of small elements, whereas the integration means summation of your infinite terms. We can't add like an algebra because all the terms are infinitesimally small. So I can say that integration is just an inverse phenomenon of your differentiation part of relation. इसके छोटे स्टैंडर्ड फॉर्मुलास दिखा देता हूं मैं आपको जो अपने को फिजिक्स में यूज होते हैं, बस उतना ही ज्यादा हम लोग याद रखेंगे इसमें, उससे ज्यादा नहीं. So I'm writing here right now standard elementary integrals. ठीक है, याद होगा स्टार्टिंग के 1 2 3 तो भी याद होंगे आप लोग सभी को. फर्स्ट वाला देखो, इंटीग्रल ऑफ योर x to the power of your n into dx क्या हो जाएगा बेटा? x n plus 1 divided by your n plus 1, where n is not equal to -1. ठीक है ना? n is equals to -1 को छोड़ के लिए सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा बेसिकली. सेकेंड वन इज integral of your dx is always equals to your x. Third one, integral of your 1 by x into dx, very important, this will be equal to your log x. And fourth one, integral of your cos x into your dx, this will be equal to how much beta? Sin x. The same way, integral of your sin x कितना हो जाएगा बेटा? Integral of sin x into dx will be equal to minus of your cos x, minus of your cos x part of relation. याद है ना सभी को ये? Sixth one, integral of your secant square x into your dx ले रहे हो. डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या था बेटा? secant था. अब इंटीग्रेशन ऑफ secant square x into dx क्या देगा? That will give me what me tan x, isn't it? डिफरेंशिएशन ऑफ cot क्या था बताओ? cosecant square. तो यहां पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं cosecant को. So this one is cosecant square x into your dx करो. So that will be getting right now for me minus of your cot x. Differentiation of secant x कितना था बेटा? secant x into tan x. अगर मैं यहाँ इंटीग्रल कर रहा हूँ, integral of your secant x into your tan x into dx, तो ये बन जाएगा secant x. ठीक है ना? इतना ज्यादा तो यूज नहीं हो जाएगा, बस थोड़े बहुत याद रख लो काफी है. Integral of your cosecant x into your cot x into dx, ये करोगे तो this will be minus of your cosecant x. इतना for 8th and 9th is not much required, तो आप लाइट ले सकते हो उसको. This one is important बेटा. Integral of your e to the power of your x into your dx is always equals to e to the power of x. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलो थोड़े एग्जांपल्स करवा देता हूं मैं. बेसिकली देखो, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू dx. ठीक है, जल्दी से करो, ट्राई करो.
तो क्या हो जाएगा integral of your, I can write this one as something like this, integral of your x square into your dx minus integral of your 5x into your dx plus integral of your 7 into dx लिख सकता हूं मैं. So ये हो गया मेरे पास कितना integral of x square into dx, like first symbol integral of x square, n की जगह क्या है square, यानी x to the power of 2 plus 1 divided by 2 plus 1. So that will become for me your x power of your 3 divided by 3 minus 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ 1 into dx, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 है ना पावर में, 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, तो ये हो गया 7. इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट इक्वल टू योर x. इसके साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, ये कांस्टेंट है c पार्ट ऑफ रिलेशन, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट ऑफ एन इंटीग्रेशन. तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास x क्यूब by 3 minus 5x स्क्वायर by 2 प्लस ऑफ योर 7 into your x. आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलो एक और एक ले लेते हैं बेसिकली. सॉल्व इंटीग्रल ऑफ योर 1 plus x cube into your dx divided by root of your x part of relations. अब हम लोग करना क्या है बेसिकली, I'm trying to take the relation right now for that one. Algebra का condition में निकाल रहा हूँ basically. So it is of your integral of your 1 plus of your x cube, 1 plus of your x cube into your dx part of relation. a plus b का whole cube का फॉर्मूला याद है किसी को? अरे मैं algebra के फॉर्मूलास लिखाना ही भूल गया मैं आप लोग. a plus b whole square, a plus b whole square part of b plus ab square plus 3ab. वेरी गुड. तो मैं लिखा देता हूँ, फिर भी एक बार आप लोग x को कर लो बेसिकली. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ योर 1 प्लस x होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3 into x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय योर ये हो गया रूट x into your dx. क्लियर है बेटा? एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन? आप खाली इसको इंटीग्रेट करो बेसिकली, यू जस्ट राइट द वैल्यूज ऑफ दैट वन एंड इंटीग्रेट विद द प्रॉपर लिमिट्स पार्ट ऑफ रिलेशन, आराम से निकल जाएगा उसको बेसिकली. ट्राई कर लोगे ना? ट्राई करो सभी लोग. जल्दी से ट्राई करो. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूँ बेटा, इधर देख लो. ये कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस दिस वन विल बी योर b क्यूब प्लस दिस वन विल बी इक्वल टू 3ab into your a प्लस b. ठीक है ना? क्लियर है? इंटीग्रेट कर सकते हो. रूट एक्स को कैसे लिखेंगे बेटा? एक्स टू द पावर ऑफ 1 by 2 और ये ऊपर चले जाएगा Minus 1 by 2. हाँ, तो बस सो दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो गया 3 into x स्क्वायर प्लस ये हो गया x क्यूब इंटू ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ -1 by 2 into your dx. अब इससे मल्टीप्लाई कर लो. दिस विल बिकम फॉर मी इंटीग्रल ऑफ योर x टू द पावर ऑफ योर -1 by 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लो 3x टू द पावर ऑफ योर 1 by ये कितना x -1 by 2 यानी ये हो जाएगा 1 by 2 बताइए ना, प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर x टू द पावर ऑफ -1 by 2 यानी ये हो जाएगा 3 by 2 प्लस x टू द पावर ऑफ 3 into x to the power of -1 by 2 అంటే 3 minus 1 by 2 that will be equal to your 5 by 2 into your dx. क्लियर है सभी को ये स्टेप? ठीक है ना? Yes, sir. Okay, sir. तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, बस कुछ नहीं है. इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ -1 by 2 into dx प्लस ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर 3 into x to the power of 1 by 2 into your dx प्लस दिस वन इज इंटीग्रल ऑफ योर 3x to the power of 3 by 2 into your dx plus this one is integral of your x to the power of 5 by 2 into your dx. I hope you can do this one. तो ये कितना आ जाएगा बेटा x to the power of your -1 by 2 plus 1 तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ -1 by 2 यानी -1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus This 1 by will become for me 1 by 2 divided by 1 by 2.
उतना ही ना, प्लस ये 3 आउट है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3/2, यानी x टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय योर 3/2 प्लस ये इसमें 3 आउट है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाय योर 7/2, बताइए सॉरी कितना है 5/2 ना, सॉरी, तो ये 5/2 हो जाएगा, कितना है, और 3/2 प्लस 1, सो दिस विल बिकम फॉर मी 5/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5/2 प्लस x टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 1, यानी x टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 1 कितना होगा बेटा, 5/2 प्लस 1 इज 2 LCM 5 प्लस 2 7/2 डिवाइडेड बाय योर 7/2 प्लस उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी आ जाएगा एवरी टाइम, तो ये कितना बनेगा बताओ, इसको मैं 2 ऊपर ले सकता हूँ, 2 into √x लिख सकता हूँ, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये 3 और ये 3 कट गया, तो ये बन गया मेरे पास, ये बना कितना बेटा, 2 ऊपर जाएगा 2x टू द पावर ऑफ योर 3/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5 x टू द पावर ऑफ योर 5/2 प्लस ये 7 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2 सॉरी 2/7 ना सॉरी, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7 x टू द पावर ऑफ योर 7/2 प्लस उसके साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, कांस्टेंट c, क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया सभी को? आ गया सर। सो आई एम नॉट गोइंग मच अगेन इन डिटेल पार्टिकुलेशन, तो उसके लिए इतना ज्यादा याद रख लो काफी है बेसिकली, क्लियर है ना बेटा सभी को? फाइन, ठीक है, क्या हुआ कोई रिस्पांस नहीं दे रहे आज, क्या बात है, सर नहीं सुनना आ रहा Yes, बल्कि सुनाई नहीं दे रहा, दे रहा सर, सुनाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो सर एक बेटा, और मरतबा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्या बोले, एक बार और मरतबा एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर हाँ दीजिएगा। ठीक है, हाँ। मैंने इसको a प्लस बी होल क्यूब में एक्सपैंड किया बेटा, 1 प्लस ऑफ योर x क्यूब एक्सपैंड करके यहाँ पर लिख लिया, रूट x कैसे लिख सकता हूँ मैं, x टू द पावर ऑफ 1/2, x टू द पावर ऑफ 1/2 ऊपर चले गया तो ये बना कितना है यहाँ पर x टू द पावर ऑफ -1/2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 into x टू द पावर ऑफ -1/2, x टू द पावर ऑफ -1/2 बन गया, 3 into x into x टू द पावर ऑफ -1/2 कितना बन जाएगा, यहाँ पर 1 है -1/2, 1 - 1/2 कितना 1/2, ठीक है ना, उसके बाद x स्क्वायर इंटू x टू द पावर ऑफ -1/2 एंड x स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, देन x क्यूब -3/2 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस खाली, सो यहाँ पर हो गया 3x टू द पावर ऑफ 2 - 1/2, 2 - 1/2 ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इसका एलसीएम हो गया 2, ये हो गया 2 - 1, तो कितना बना 3/2, यहाँ पर देखो x टू द पावर ऑफ 3 x टू द पावर ऑफ -1/2, सो 3 - 1/2 कितना हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 5/2 इंटू dx, dx से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ योर 1/2 into dx plus integral of your 3x to the power of 1/2 into dx plus of your integral of your 3x to the power of 3/2 into dx plus integral of x to the power of 5/2 into dx। अब फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x to the power of n की जगह क्या है यहाँ पर -1/2, तो x to the power of your -1/2 plus 1 divided by minus of 1/2, तो -1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 1/2, ठीक है ना, प्लस 1 है ना बेटा, 1/2 प्लस ऑफ योर 1, तो इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ये -1 प्लस 1 है यहाँ, क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/2 x टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो गया। उसके बाद क्या किया, फिर फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बताओ, इंटीग्रल ऑफ योर x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3/2 प्लस 1 इज 5/2, तो वही लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ठीक है।
तो इसी तरह से यहाँ पर भी 5/2 + 1 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होना, मुझे एक रेंज से जब जा रहे हो, बेसिकली मान के चलो आप यहां से यहां तक जा रहे हो, t = 0 से लेके t = मान के चलो 100 सेकंड से। मैं अगर आपको पूछ रहा हूं, आप t = मान के चलो 62.75 सेकंड्स के पास एग्जैक्टली आपकी पोजीशन क्या थी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर एक पर्टिकुलर टाइम के मैं आपकी पोजीशन पूछूं, उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट वैल्यू बोलेंगे। तो मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी पोजीशन क्या थी, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे जहां इट इज डिजायर्ड टू इंटीग्रेट, it is desired to integrate a function, integrate the function between two given limits, between two given limits, say a and b। मान के चलो दो लिमिट्स दे रखा है a and b, then the integration जो भी हम लोग को आ रहा, then the integration is said to be definite integration. So this will be your definite integration. Integration. A definite integration will always gives me what? Particular value. Definite integration, it always लिखता हूं, it always gives a particular value. It always gives a particular value. ठीक है ना? अब जैसा देखो इसको लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रल ऑफ योर, ये हो गया ये और ये हो गया बी, सम फंक्शन मान के चलो f of your x into your dx। इसका जो भी फंक्शन आएगा मेरे पास, दैट इज कैपिटल F into your x, तो इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डालेंगे, एंड दिस इज ये एंड दिस वन इज बी। ए को लोअर लिमिट बोलेंगे, बी को अपर लिमिट बोलेंगे, और इसको हम लोग ऐसा करेंगे, सो f इंटू एक्स की जगह क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, माइनस f फिर एज इट इज रखेंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, दैट इज नथिंग बट a दिस विल बी योर आंसर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वेयर a इज कॉल्ड एज बेटा, a इज योर लोअर लिमिट, a इज योर लोअर लिमिट, एंड b इज नथिंग बट व्हाट बेटा, अपर लिमिट। b को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर लिमिट बोलेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो एक एग्जांपल बता देता हूं, सो विल गेट ए क्लैरिटी हाउ वी एग्जैक्टली विल बी यूजिंग दिस वन इन द फिगर्स। मान के चलो, इफ आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व इंटीग्रल ऑफ योर tan स्क्वायर थीटा इनटू योर d थीटा, लिमिट से मान के चलो 0 से लेके π/4 तक, दिस आर द लिमिट्स। सो इसको सॉल्व करना है पहले, तो क्या करेंगे देखो पहले, सो दिस वन इज इंटीग्रल ऑफ योर, इसको सिंप्लीफाई करो, tan square theta into your d theta. Tan square theta can be written as beta integral of your, this one is nothing but of your secant square theta minus 1, लिख सकता हूं ऐसा, into your d theta, लिमिट से 0 से लेके π/4 तक। ठीक है ना? क्लियर है? सो इंटीग्रल ऑफ secant square theta into d theta क्या आ रहा है देखो, इंटीग्रल ऑफ योर secant square theta कहाँ लिखा मैंने, इंटीग्रल ऑफ योर secant square theta लिखा है कहाँ, या secant square x into dx कितना आ जाएगा मेरे पास, tan x। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मुझे, दिस विल बिकम फॉर मी इंटीग्रल ऑफ योर secant square theta into d theta is nothing but of your tan theta minus इंटीग्रल ऑफ d theta is nothing but what बेटा, theta, और इसकी लिमिट्स हो गई मेरे पास 0 से लेके π/4। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर, तो अपर लिमिट क्या है, tan ऑफ योर, दिस विल बिकम फॉर मी π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, अपर लिमिट माइनस ऑफ योर लोअर लिमिट, अपर लिमिट tan थीटा में अपर लिमिट लिखना है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर tan थीटा इज π/4 माइनस ऑफ योर, ये हो गया मेरे पास tan ऑफ योर π/4। ठीक है ना? तो पहले अपर लिमिट है, उसके बाद tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है? ये थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है मुझे। ठीक है? हाँ
हाँ बता रहा हूँ। ये देखो tan थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ जो बेसिकल वैल्यूज यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास tan के थीटा के इक्वेशन में अपर लिमिट माइनस ऑफ योर लोअर लिमिट। 5/4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 45 40। 5. tan 45 कितना? 1 1 कितना tan 45? 1 1, तो ये हो गया 1 माइनस थीटा की जगह क्या लिखोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 5/4 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा? 5/4 आ गया? नहीं आया? Yes, sir. सर फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं आया। देखो अब ये थीटा पे जो है ना, हम लोग ये अपर लिमिट लिख लेते हैं, तो मैं डिटेल में कर देता हूं यहाँ पर tan ऑफ योर π/4, ठीक है, अपर लिमिट डाल दिया, माइनस फिर यहाँ पर हो गया tan ऑफ योर 0, ठीक है, यस सर। माइनस फिर ये थीटा में क्या डालोगे? अपर लिमिट 5/4. π/4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0, तो ये बना कितना? tan π/4 कितना? 45. tan 45 कितना? 1 1 1 माइनस tan 0 and 0. 0 Infinity. infinity tan 90 इंफिनिटी ना बेटा, 0 0. 0 हो सर गया कितना? 0 होता है ना? यस सर। ठीक है, और उसके बाद बताओ क्या हो रहा है? बेसिकली दूसरे वैल्यूज भी डालो ना, 5/4. isn't it? tan 0 is nothing but how much for me? 0. tan 45 is nothing but 1. ये माइनस ये कितना हो गया? π/4 माइनस 0 कितना हो जाएगा? π/4। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1 1 माइनस ये कितना आया? π/4 आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो सेकंड एग्जांपल देखो, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3 into x² प्लस 2x प्लस 5 into dx। लिमिट्स मान के चलो 0 से लेके 1 तक ले रहा हूं। चलो इसको करो जल्दी, पहले इंटीग्रेशन करो बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ योर 4 into x³ into dx लिखोगे, लिमिट 0 से लेके 1 तक प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस इंटीग्रल ऑफ योर 3 into x² into dx लिखोगे, लिमिट 0 से लेके 1 तक प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 2x into योर dx लिखोगे, लिमिट 0 से लेके 1 तक प्लस इंटीग्रल ऑफ योर 5 into dx लिखोगे 0 से लेके 1 तक। तो इसमें से मैं 4 बाहर निकाल रहा हूँ, 4 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ x³ कितना बनेगा? x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 दैट इज नथिंग बट 4, और इसका लिमिट आ गया 0 से लेके 1 तक, माइनस इसमें से 3 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ योर x² कितना आएगा बेटा? x³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स आर 0 to 1, प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ योर x into dx कितना आएगा बेटा? x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, प्लस 5 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ x इज नथिंग बट ऑफ योर x, और लिमिट हो गया 0 से लेके 1 तक। अब इसको सिंप्लीफाई देखो, ये 4 यहाँ 4 करते हुए दिखाई दे रहा है, ये 3 भी करते हुए दिखाई दे रहा है, ये 2 और ये 2 भी करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी ये हो गया x⁻⁴। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? x⁻⁴ माइनस सॉरी इसको लिमिट्स भी लिखते हैं हम, ये हो गया लिमिट 0 से लेके 1 तक, माइनस ये हो गया 3 3 चलेगा x⁻⁴, लिमिट्स हो गया 0 से लेके 1 तक, प्लस x² हो गया, लिमिट्स हो गया फॉर मी 0 से लेके 1 तक, प्लस 5x हो गया, लिमिट्स हो गया फॉर मी 0 से लेके 1 तक। चलो अब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 1⁴ माइनस 0⁴, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप लोग की क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ मैं। x में फिर अपर लिमिट डालो, तो ये हो गया 1³ माइनस ऑफ योर 0³ प्लस यहाँ पर फिर x² की जगह 1² माइनस ऑफ 0² आ गया, प्लस 5 into x की जगह क्या डालोगे? 1 माइनस 0, तो कितना आ रहा है? 1⁴ कितना होगा? बताओ जल्दी से, 1⁴ कितना होगा? 1,
तो 1 टू द पावर ऑफ क्यूब भी कितना होगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू कितनी हो गई 5, तो वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम फॉर मी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5, इजंट इट। और एक वैल्यू थी मेरे पास कितना 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, पूरे जीरो हो गए तो पूरा निकाल दे रहा हूँ बेसिकली, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 प्लस 1, ये हो गया 6, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है बेसिकली, आप लिमिट कर लो जाओ। आ गया सभी को, Yes, sir. क्लियर है, आया ना? Sir. Yes, sir. हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे। सर स्टेप 2 एक बार बताइए ना। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये देखो मैंने 4 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बोले तो क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 ना बेटा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो लिखा था मैंने, ये वाला, x की जगह क्या है 3 है ना, x टू द पावर ऑफ 3 इंटू डी एक्स, यानी x 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो कितना बना x टू द पावर ऑफ 4/4, आया? सर। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इंटू dx, 3 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू dx कितना आ रहा, x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, आया ये? आया? नहीं आया? इंटीग्रल ऑफ योर x स्क्वायर इंटू dx मतलब x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये लिखा है ना मैंने, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, आया? सर समझ में आया? हाँ आया। अच्छा आया। चलो उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ योर एक्स टू द पावर ऑफ 1 इंटू डी एक्स, तो हो गया x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो 2 यहाँ पर बाहर था तो 2 यहाँ से कट गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, लिमिट्स। अभी x की जगह हम लोग ने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, इन द प्लेस ऑफ x 1 टू द पावर ऑफ 4 4, उसके बाद 0 डाला, 0 टू द पावर ऑफ 0 क्या बनेगा 0 ही बनेगा ना, तो इसको पूरों को मैं ऐड कर लिया, इट इज 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. समझ में आया सर। चलो so I hope you have been clear with the integration के पूरे values, क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलो एक्सपोनेंशियल्स और 1/x भी लिख लिए ना हम लोग पूरे, चलो लिख लिया। e की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 2.71, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, दैट इज 3.14। कैलकुलेशन के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, ठीक है? 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस बेटा, 2 पाई रेडियंस, और पाई बाय 2 रेडियंस मतलब कितना बेटा 90. पाई बाय 2 रेडियंस, स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बोला था, दैट विल बी 90. इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये इंटीग्रेशन अपने को यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड कुछ नहीं है, इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अगर मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ कुछ भी, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, मान के चलो ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ योर एन इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में है, समझो क्या है,
इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ एन इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मुझे, ये जो टर्म है इसको एज इट इज रखो। सो दिस वन इज योर ए एक्स प्लस ऑफ योर बी टू द पावर ऑफ योर, यहाँ पर क्या करोगे n प्लस 1, ठीक है, ax प्लस बी, ये n जो है ना n प्लस 1 कर दो, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 जो लिखा ना यहाँ पर लिख लो आप, दिस वन इज योर n प्लस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ योर ax प्लस b टू द पावर ऑफ n इंटू dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ax प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो पावर लिया आपने n प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है बेटा ये, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ कोई, तो इसका आंसर बनेगा मेरे को दैट इज इक्वल्स टू, ये बनेगा ax प्लस ऑफ योर b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया n प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा यहाँ पर ये ए। सो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है? आया? आया सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान के चलो सर कोफिशिएंट ऑफ x समझ में नहीं आया। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो वैल्यू है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, x को लग के जो वैल्यू है ना वो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। हाँ समझ में आया। ठीक है चलो अब देखो, अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेट 2x प्लस 3 होल क्यूब इंटू dx, बताओ इसके आंसर क्या आ जाएगा। ये क्या इस फॉर्म में है, देखो a की जगह 2 है, x की जगह x है, b की जगह 3 है और n की जगह 3 है, इंटू dx, तो आंसर क्या होगा बताओ, बता सकता है क्या? 2x plus 3 whole power 4 by 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ x, यानी इसका आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, यानी आंसर कितना हो गया 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 8। आया सभी को? आया बेटा? yes हाँ sir सर। क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। सेकंड वाला देखो, I integral of your dx divided by 3x plus 2, okay, integral of your dx divided by 3x plus 2 या ax plus b फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जो फॉर्मूला आएगा इसका देखो बेसिकली कैसे लिखेंगे, दिस विल बी 1 by x है ना, ये देखो 1 by x, इंटीग्रल ऑफ 1 by x कैसा आ जाएगा बेटा, लॉग में आ जाएगा। सो दिस वन इज log e into your x, दिस इज नथिंग बट 3x plus of your 2 divided by coefficient of x, divided by coefficient of x। अगर ये फॉर्म इंटीग्रल ऑफ योर dx by ax plus b के फॉर्म में ऐसा आया, नीचे आया, तो इसको हम लोग क्या लिख रखेंगे, ये मालूम है ना हम लोग 1 by x into dx कैसे लिखोगे हम लोग, log of your e into x, x की जगह क्या है यहाँ पर 3x plus 2 है, तो वो वैल्यू डाल रहा हूं मैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा log e 3x plus 2 divided by coefficient of your x, यानी ये कितना बनेगा बताओ जल्दी से, ये हो गया इसका log of your exponential e 3x plus of your 2 divided by coefficient of x मतलब कितना 3। क्लियर है? यस आया सर। थर्ड फॉर्मूला? सर नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा I is equals to, यानी इंटीग्रेशन ऑफ योर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ योर 2x प्लस ऑफ योर 3 इंटू dx लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू योर dx, ये कैसा आएगा देखो, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू,
ये जो ऊपर लिखे ना आप लोग, इसको एज इट इज रखो, कुछ भी मत चेंज करो। एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 2x प्लस ऑफ योर 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। ठीक है? ओके सर। फिर से एक बार देख लो बेटा, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू द पावर ऑफ n इंटू dx का फॉर्मूला क्या है? ax प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। सेकंड वन देखो, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 3x प्लस 2 इंटू dx का वैल्यू है log e 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dx विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एज इट इज डालो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। बेटा आप लोग अनम्यूट हो जाओ, आई एम लिसनिंग द वॉइसेस फ्रॉम योर साइड। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डालो, एक नोट डाल के लिखो। केमिस्ट्री आज भी समझ में आया। आई पापा मैं अभी समझ नहीं ले क्या हो रहा है? आप लोग की बातें यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं? The above procedure is applicable only when x is in single degree। यानी अगर इसको x स्क्वायर है, x क्यूब है तो नॉट applicable। that is not applicable for x स्क्वायर, x क्यूब, सो ऑन। अगर कुछ होगा तो वैसे वाले कंडीशन के हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? So, x जो है ना Yes, सिंगल sir. टर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये x स्क्वायर है तो ये मेथड यूज नहीं होगा बेटा, और अपने को उतना हाई लेवल में जाएगा नहीं। मेडिकल के बच्चों के लिए बस इतना काफी है, एक सिंगल टर्म के लिए इंटीग्रेशन कर लो, काफी है। इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू द पावर ऑफ n इंटू dx इज ax प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ योर x। उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ योर dx डिवाइडेड बाई योर 3x प्लस 2। 3x की जगह आप ax प्लस b भी लिख सकते हो बेटा, log e ऑफ योर ax प्लस b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने वैल्यू लेके लिखा सो दैट एग्जांपल के नीचे भी काम आ जाएगा बोल के। उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ योर एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ ax प्लस b, a की जगह मैंने 2 ले लिया, b की जगह मैंने 3 ले लिया, इनटू dx विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्मी एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ योर x। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स करें इस पे? यस okay, सर। sir. चलो सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट वन देखो, नंबर ए, इंटीग्रल ऑफ योर 2x प्लस 1 होल क्यूब इंटू dx। बताओ लिमिट्स आ गया 0 से लेके 2 तक, जल्दी करो। ये फर्स्ट फॉर्म के कंडीशन में तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज नथिंग बट 2। यानी आंसर कितना आया? 2x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय योर 8। क्लियर है सर? नेक्स्ट वन, अगर वैल्यूज भी दे रखा है, बेसिकली लिमिट्स भी दे रखा है ना बेटा, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू, लिमिट क्या दे रखा है देखो, नहीं बोले सर। लिमिट 0 से लेके 2 तक, ठीक है ना। तो ये कितना बना मेरे पास इन द प्लेस ऑफ योर x, ये कितना बना मेरे पास देखो 1/8, ये हो गया 2x प्लस ऑफ योर 1 टू द पावर ऑफ 4, लिमिट्स आर 0 to 2, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 1/8 इंटू ये हो जाएगा 2 इन द प्लेस ऑफ x, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट कितना है 2, लोअर लिमिट हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 0 टू द पावर ऑफ योर 4। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर इसमें डालो 2, लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0, ठीक है ना बेटा। पहले अपर लिमिट डाला मैंने, फिर उसके बाद x की जगह मैंने लोअर लिमिट डाल रहा हूँ 2 इंटू 0, सो 2 इंटू 0 प्लस एनीथिंग, 0 प्लस ऑफ 1 टू द पावर ऑफ 4 कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा ना।
so it is nothing but of your 0 lower limit हो गया, so this is nothing but of your +1 to the power of your 4. तो ये कितना बना देखो 1/8 into 2 into 2 4, ठीक है ना, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, तो ये हो गया 5 to the power of 4, ये हो गया 1 to the power of 4, तो ये हो गया 1. तो बना कितना मेरे पास 1/8 into 5 to the power of 4 कितना हो जाएगा बेटा 625. 625 minus 1, यानी ये बन गया 624 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 78. आ गया सभी को? यहां तक तो आसान था. यहाँ पर सिर्फ x की जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, अपर लिमिट डाल रहे हैं, उसके बाद लोअर लिमिट डाल रहे हैं. सो इन द प्लेस ऑफ x सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, विल गेट द आंसर फॉर दैट वन. क्लियर है सभी को? sir. Yes, sir. और एक वाला भी ले लो. इंटीग्रेट x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू dx, ये आप लोग करके बताओ जल्दी से. लिमिट हो गया 1 से लेके 2 तक. चलो करो आप लोग. पहले फॉर्मूला तो बता दो, आंसर बता दो, इसका क्या हो जाएगा. x Plus 2 to the power 4 by 4 to the into power of 1. 2 plus 1 ना 3 3, sorry. 3 divided by 3 into coefficient of x. coefficient of x कितना है यहाँ पर 1. 1. 1, तो ये हो गया 1. तो आंसर आया कितना मेरे पास x प्लस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ओवर 3, और इसका लिमिट भी है ना, 1. तो यहाँ पर हो गया लिमिट 1 और ये हो गया 2. तो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा 1/3 आउट. तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ इसको, सो इट इज नथिंग बट ऑफ योर अपर लिमिट डालो, दैट इज नथिंग बट 2 प्लस ऑफ योर 2 होल क्यूब माइनस लोअर लिमिट डालो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ योर 2 होल क्यूब. आ गया सभी को? ये हो गया 1/3 इंटू ये हो गया 2 प्लस 2 कितना 4, तो ये हो गया 4 क्यूब माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 क्यूब. क्लियर है सभी को? सो इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 4 क्यूब कितना 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 64 माइनस 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 27. तो ये हो गया मेरे पास 64 माइनस 27 कितना हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 3. आया सभी को? Yes, sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा नहीं? आ गया, sir. पक्का? Yes, sir. चलो थर्ड वन देखो. सी इंटीग्रल ऑफ योर e टू द पावर ऑफ 2x इंटू योर dx. लिमिट है 0 से लेके 2 तक का. बताओ जल्दी से. इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ऑफ 2x, इसके साथ इंटीग्रल ऑफ योर 2x इंटू योर dx कितना आ जाएगा बताओ. e टू द पावर ऑफ 2x को एज इट इज रखना है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. 1 है. हाँ, 2 है. कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, 2. यानी e टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2. इसके लिमिट्स क्या है? लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 0 to 2. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, यानी ये हो गया 1/2 आउट. तो ये हो गया यहाँ पर e टू द पावर ऑफ 2x, और लिमिट्स हो गए कहां से कहां तक बेटा 0 से लेके 2 तक. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो ये हो गया हाफ, सो ये हो गया e 2 इंटू अपर लिमिट इज नथिंग बट 2 माइनस e 2 इंटू लोअर लिमिट इज नथिंग बट 0. तो ये बन गया कितना मेरे पास हाफ इंटू एक्सपोनेंशियल 2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 4 माइनस e टू द पावर ऑफ 0. सो ये हो गया मेरे पास 1/2 exponential to the power of 4 minus exponential to the power of 0 is always equals to how much for me 1. तो आंसर क्या है मेरे पास e to the power of 4 minus 1 divided by 2. आया सभी को? Okay. आया बेटा? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट वन और देखो.
इंटीग्रल ऑफ योर dx। सर हाँ बेटा, Good afternoon. उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते? इसकी वैल्यू दिया तो सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डाल के कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन जरूरत नहीं है ना मेरे को। वो आप बोले ना to the power of 4 2.7 minus 1 ऑप्शंस मेरे को e पावर ऑफ 3 e पावर 4 में ही देगा, बस इतना ही याद रख लो, बस काफी है, यहाँ तक ही काफी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, इंटीग्रल ऑफ योर dx डिवाइडेड बाय a माइनस ऑफ योर x, ये कितना होगा बताओ जल्दी से। ये कौन से फॉर्म में है? ये फॉर्म में है, dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 log ऑफ की वो वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, बस उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सो दिस विल बी इक्वल टू योर log ऑफ योर e, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, 1. कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 है कि -1 है? -1 है, फिर वो गलती नहीं करना है। log ऑफ योर e इंटू योर a माइनस ऑफ योर x डिवाइडेड बाय, ये हो गया -1, तो ये हो गया मेरे पास माइनस, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log ऑफ योर e एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ a माइनस ऑफ x। लिमिट्स मान के चलो, अगर मैं 0 से x तक दे रहा हूँ तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से लेके x तक हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एज इट इज लिख दो बेसिकली। तो यहाँ पर हो गया log ऑफ योर e इंटू योर, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पार्ट ऑफ रिलेशन, यानी x की जगह x ही रखना है मेरे को, तो ये हो गया a माइनस ऑफ योर x, फिर माइनस ऑफ योर log ऑफ योर e इंटू योर a माइनस ऑफ योर 0। समझ में आया? इन द प्लेस ऑफ x फिर x रखना है, फिर इन द प्लेस ऑफ x 0 रखना है, तो ये बना मेरे पास कितना? माइनस ऑफ योर, ये हो गया log ऑफ योर e इंटू a माइनस ऑफ योर x, माइनस ये हो जाएगा log ऑफ योर a माइनस 0 कितना हो जाएगा? ये। ठीक है, ठीक है बेटा, Okay, sir. ठीक है ना? ये माइनस दोनों के लिए कॉमन है, देखो बेटा, जी सर. isn't it? अगर ये माइनस से निकाल रहा हूं तो ये उल्टा लिख सकता हूं मैं बेसिकली, सो दिस विल बिकम फॉर मी log e इंटू योर a माइनस, ये हो जाएगा log e इंटू योर a माइनस ऑफ योर x। ये माइनस से निकाल रहा हूं, ये माइनस से अगर निकाल दिया तो इसको यहाँ पर लिखो, इसको यहाँ पर लेके चले जाओ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। log e इंटू a माइनस ऑफ log e इंटू योर a माइनस x, तो ये दिस इन द फॉर्म ऑफ योर log a माइनस b, तो ये बन जाएगा log ऑफ योर e इंटू योर a बाई योर a माइनस ऑफ x। क्लियर है? सर एक बार फिर से समझाइए ना. कौन सा पार्ट समझाऊं बेटा? ये देखो, ये जो फॉर्म है ये कौन से फॉर्म में है? देखो इस वाले फॉर्म में है ना, इंटीग्रल ऑफ dx बाई 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 मतलब log e 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसको भी मैंने यहाँ पर वही लिखा है, dx डिवाइडेड बाई a माइनस x, a माइनस x मतलब कितना? log e इंटू योर a माइनस x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कोफिशिएंट कितना है? -1 है, तो log e a माइनस x डिवाइडेड बाई -1, तो -1 बाहर निकाल लिया, तो log e a माइनस x लिमिट्स कितना है? 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक, यानी इस x के पोजीशन में हम लोग को, इस x के पोजीशन में हम लोग x की वैल्यू डालना है, माइनस log e a माइनस x की जगह x डाले तो फिर x ही आएगा, x माइनस, उसके बाद फिर एक x की जगह 0 डालना है, तो माइनस log e a माइनस 0। क्लियर है? यस सर. उसके बाद माइनस ये हो गया log e a माइनस x, ये माइनस 0 कितना आ जाएगा? ये, तो इट इज माइनस ऑफ log e a, ये माइनस साइन हटा रहा हूं मैं, अगर ये माइनस से निकालना है तो इसको रिवर्स कर लो, तो ये हो गया log e a माइनस log e a माइनस x। ठीक है, क्लियर है? यस सर. ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा log e a बाई a माइनस, ये कैसा आया बताओ? अपने को रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स आइडिया हो गए बेसिकली, log b माइनस log a विल बी इक्वल टू log ऑफ योर b बाई a, याद है? जी सर. याद नहीं है? लिखा दो एक बार लॉग्स का भी। ठीक है, ये तो समझ में आया ना यहाँ तक इंटीग्रेशन इसका? Yes, यस sir. सर. एक बार यहाँ पर मैं आप लोग को वो भी लिखा देता हूँ रफली, आप लोग जल्दी जल्दी देख लो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम क्या है बताओ बेटा जल्दी से?
अगर मेरे पास मान के चलो सम 1000 है, कैसे लिख सकता हूं मैं? 10 to the power of 3, Yes, isn't sir. it? तो ये कैसा हो जाएगा? log to the base 10 into your 1000 is equals to 3. 10 क्या है यहाँ पर? बेस. 10 क्या है यहाँ पर? बेस. 10 को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? 10 is known as base. ठीक है, मैं बाद में आप लोग को डिटेल में करवा देता हूँ. Don't make tension of that one unnecessarily. तो बस रूल्स ऑफ लॉगरिथम में अब ये याद रख लो, अगर मेरे पास log of your ये m into n है, प्रोडक्ट में है, so this will become for me log of your a into m प्लस हो गया log of your a into your n. okay, this is the first rule. second rule देख लो, log of your ये हो गया बेस, this is m divided by n. अगर ये फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? log to the base a into capital M minus log to the base a into capital N. और थर्ड वन देख लो, log to the base a m to the power of n अगर है to the power में, तो जो भी पावर है इसको बाहर निकालो n, this one is log to the base a into your m. ठीक है? Okay, ये sir. मैं बाद में आप लोग को लॉगरिथम डिटेल में करवा देता हूँ. तो दिस वाज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस. ये तीनों को आप लोग को कंपलसरी याद रखना है किसी हाल में भी. दिस इज नंबर 1, दिस इज योर नंबर 2 एंड दिस इज योर नंबर 3. ये तीनों को याद रखना है. आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स, उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस. ओके ना? क्लियर है सभी को? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. So that was the about your integration. इतना नॉलेज अपने को इंटीग्रेशन में काफी है. अब इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है. अगर इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए तो यू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर द गिवन कंडीशन. लेकिन फिजिक्स में एप्लीकेशन जब हो रहा है, यू प्लीज लेट मी नो द एप्लीकेशंस ऑफ दैट वन, वो भी करना है. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट योर मैक्सिमा और मिनिमा कैसा निकालना है. how to take the maxima and minima, or it is very important for your हर क्वेश्चन में मैक्सिमम लाइक काइनेमेटिक्स में भी आता है, मे बी और ऑफ योर करंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के कंडीशंस आते हैं. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द गिवन कंडीशन. तो ग्राफ वगैरह तो हो गया ना अपना? ग्राफ क्लियर हो गया सभी का ना? Yes, sir. ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेते हैं सभी का हो गया बेसिकली. I have done about your graphs. I have done your hyperbola condition, ellipse वगैरह के भी कर दिया मैं basically. I just need to do about your some of the terms related to your maxima and as well as of your minima. ठीक है ना? Okay, sir. Sir, हाँ बेटा बोलो. तो hyperbola and rectangular hyperbola वो explain करो सर. फिर एक बार बताओ. सर अलजेब्रा के बोलते बोले आप फॉर्मूला क्या बोले? फॉर्मूलाज बोलते थे आप. अच्छा ठीक है, चलो बोल देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा, इसमें से छोटा सा टॉपिक है. दैट इज अबाउट योर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. ज्योमेट्रिकल मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ योर डेफिनाइट इंटीग्रेशन. थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है. हाउ डू यू यूज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ योर डेफिनेट इंटीग्रेशन? कुछ नहीं है बेटा, बस याद रख लो इतना कि इंटीग्रल ऑफ योर y into dx represents what बेटा? It represents the summation. It represents the summation of area of all elements between A and B. ओके मान के चलो मेरे पास ऐसा एक y कोऑर्डिनेट है और ऐसा एक x कोऑर्डिनेट है और इसमें मैंने कर्व ले लिया ऐसा. सो इसका जो इनिशियल लिमिट है ये है ये, और इसका जो फाइनल लिमिट है ये हो गया b. इसके अंदर मैं कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? देखो इसको मैं n नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर सकता हूँ. इसका एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया मैं यहाँ पर, फिर एक और एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया. ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना सकता हूँ मैं बेसिकली. यानी ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे चले गया और इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया y. सो इंटीग्रल ऑफ दिस y into dx will always gives me what बेटा? एरिया. इंटीग्रल ऑफ योर y into dx always gives me what बेटा? एरिया पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को? ये देखो कभी भी आप इंटीग्रल ले रहे हो,
इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx अगर ग्राफ के क्वेश्चंस करना है तो इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट, एरिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b। a एंड b के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स रहेंगे वो पूरों को समेशन कर लेंगे विद द लिमिट्स ऑफ योर a टू योर b, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट विल गिव मी द एरिया। यानी इनडायरेक्टली आई मीन टू से दैट एरिया अंडर योर y and x, integral of your y into x will always gives me the area under the curve of your y into your x part of relation। क्लियर है सभी को? Yes, sir. नहीं आया? देखो और मैं थोड़े डिटेल में करा देता हूँ। मान के चलो मेरे पास ऐसा एक एलिमेंट है, ये x है और एक y है। मैं कुछ कर्व ले रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो एक कर्व ऐसा आ गया। ओके, यहां से मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a के पास, और ये मेरा पॉइंट b है। फिर ये हो गया मेरे पास पॉइंट x इज इक्वल्स टू c के पास। अब देखो मेरे पास कितना पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है पूरा जो पूरा पॉजिटिव है, और उसके पास नीचे वाला एरिया है पूरा नेगेटिव है। ये पूरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये भी हो गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव और ये हो गया मेरे पास नेगेटिव। अगर मुझे इंटीग्रल लिखना है इसके अंदर, इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू डी एक्स, ये y और ये dx, यहाँ से पूरा तक x तक लिखना है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, x इज इक्वल्स ए पे स्टार्ट होके x इज इक्वल्स टू c के पास एंड कर रहा हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे आप, देखो बहुत क्लियरली आप लोग को समझना है इसको। पहले मैं जा रहा हूँ x इज इक्वल्स ए से लेके x इज इक्वल्स टू b तक, तो क्या लिखोगे पहले, इंटीग्रल ऑफ y इंटू योर dx, कहां से, a से लेके b तक, प्लस फिर कहां से जा रहे हो आप, यहां से जा रहे हो। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, इंटीग्रल, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं बेसिकली। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू योर dx, लिमिट कहां से कहां तक जा रहा हूं बेटा, b से लेके c तक, यहां से यहां तक, यानी इन दोनों एरिया को मैं ऐड कर रहा हूं। सो दैट विल गिव मी द पूरा इंटीग्रेशन अंडर द कर्व पार्ट ऑफ रिलेशन। y और x के बीच में जो भी कर्व होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑफ योर नेगेटिव टर्म। क्लियर है? Yes, sir. मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मतलब इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx विल गिव मी ऑलवेज एरिया, बस इतना याद रख लो। इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx, यानी y एक्सेस और x एक्सेस में जो भी कर्व आएगा वो पूरा कर्व हम लोग को क्या देगा, एरिया देगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो सकता है, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कभी भी हम लोग अगर एरिया निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट, एरिया ऑफ द गिवन कर्व पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है सभी को? क्लियर है? सर हाँ बोलो बेटा, बोलो। क्लियर है बोल के बोल रहा था। चलो एक क्वेश्चन दे लेता हूँ बेसिकली, आप देखो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मान के चलो, फाइंड द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, under the straight line y is equals to 2x plus 3 with x-axis between the lines x is equals to 2 and x is equals to 4। चलो ये क्या इक्वेशन है बेटा, y is equals to 2x plus 3 क्या इक्वेशन है, y is equals to 2x plus 3 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेटा। y is equals to mx plus c के फॉर्म में, Yes, sir. isn't it? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बताओ जल्दी से। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, isn't it? तो कांस्टेंट कितना है मेरे पास 3, और ये हो गया इक्वेशन y is equals to 2x plus 3। कहां से कहां तक है बताओ मेरे को, x is equals to 2 पे, यानी 0 1 यहाँ पर 2 आ रहा, तो ये 2 हो गया। तो इसके अंदर ये जो ग्राफ है ना ये, उसके बाद 3 and 4, तो मान के चलो ये 4 हो गया। तो इसके अंदर जो भी बचा हुआ है अभी राइट नाउ, ये जो भरा हुआ है ना, ये पूरा मेरा कर्व है, ये पूरा एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे, मेरे पास y है और मेरे पास x भी है, ठीक है ना बेटा। तो y पार्ट ऑफ dx, तो इसको कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, कैसे लिखूं मैं, या एरिया इज इक्वल्स टू
कैसे लिखोगे? इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx लिखोगे, अभी बताया था ना मैंने। सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y की वैल्यू कितनी है 2x प्लस ऑफ योर 3 इंटू योर dx। लिमिट क्या है 2 से और अपर लिमिट क्या है 4, तो कैसा हो जाएगा ये? एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर, ये हो जाएगा 2x इंटू योर dx प्लस ऑफ योर इंटीग्रल ऑफ योर 3 इंटू योर dx, लिमिट्स 2 to 4, लिमिट्स 2 to 4, तो ये हो गया 2 आउट। इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx कितना हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो गया 2 से लेके 4 तक, प्लस 3 आउट है। इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट ऑफ योर x, लिमिट्स आर नथिंग बट फ्रॉम 2 to 4, सो ये 2 चले गए यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 स्क्वायर माइनस ऑफ योर 2 स्क्वायर प्लस ये 3, अपर लिमिट माइनस लोअर, x में अपर लिमिट डाल लो 4, लोअर लिमिट डाल लो 2, तो ये हो गया कितना आ रहा देखो, कितना आ रहा? 12 हाँ 12 4 स्क्वायर कितना है? 16 16 माइनस 2 स्क्वायर कितना है 4 4 प्लस ये हो गया 3, 4 माइनस 2 कितना 2, तो कितना आ गया 14 माइनस 4 की 16 माइनस 4 12 प्लस 3 2 जा 6, तो कितना हुआ 18 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ना, Yes, तो sir. स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा जो भी देगा। समझ में आया? मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, अगर y और x में अगर आपने के पास है तो y और x में जो भी ग्राफ होगा वो कभी भी क्या देगा अपने को? एरिया देगा। सो एरिया निकालना है अपने को, मतलब क्या? एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx, ठीक है? यस सर। समझ में नहीं आ रहा? नहीं Yes, थोड़ा sir. दिक्कत हो रही है नहीं? चलो प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एक बार कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक बार जल्दी से अच्छे से याद कर लो कि कभी भी कोई भी एरिया ले रहे हैं हम लोग, y और x के अंदर जो भी होगा दैट विल गिव मी एरिया। मतलब क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट? एरिया। बस इतना याद रख लो, बस काफी है बेसिकली फिजिक्स में। इंटीग्रल ऑफ y इंटू dx, कभी भी हम लोग अगर ग्राफ ले रहे हैं बेसिकली, सो इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx विल ऑलवेज गिव्स मी द एरिया। जैसा मान के चलो आप लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे, सो वर्क पावर एनर्जी में एरिया अंडर दिस वन विल ऑलवेज गिव मी व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा हूँ, सो इंटीग्रल ऑफ f इंटू x विल ऑलवेज गिव्स मी व्हाट? वर्क डन। सो उसी तरह से हम लोग को इंटीग्रल ऑफ योर y इंटू dx विल ऑलवेज गिव्स मी द एरिया, विल ऑलवेज गिव्स मी द एरिया पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. ये आज लोग आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, कल विल ट्राई टू गो विद योर मैक्सिमा एंड एज वेल एज योर मिनिमम। Okay, sir. सर यस्टरडे जो होमवर्क दिए थे उसमें से एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो ना, बताओ। व्हाट्सएप पे शेयर करो ना बेटा, आपका नंबर नहीं पता सर। ग्रुप में हो ना, एलटी में? मैं मोहम्मद आसिफ अली है सर। हाँ सर हूँ एलटी सर। एलटी ग्रुप में है ना आप लोग? हाँ सर। तो वो ग्रुप में पोस्ट करो, ओके ठीक है ना? मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो बाय बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर। Thank you. अल्लाह हाफिज़ सर।